तो गवर्नेंस क्या है? जिस तरीके से पॉलिसी, सो द वे द गवर्नमेंट टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट्स इट, ये होता है गवर्नेंस एक्सपेक्ट. द बिहेवियरल एक्सपेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नेंस. और जब हम इसी गवर्नेंस का हम असेसमेंट करते हैं ऑन द बेस ऑफ गुड और बैड, जब वो गुड होता है तो वी कॉल इट गुड गवर्नेंस. सो बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द गवर्नेंस वी कॉल गवर्नेंस एज गुड गवर्नेंस. So based on the assessment of governance, based on assessment of governance, we call it as a good governance. So based on the assessment of the governance, governance can be good or bad. So based on the assessment of governance, governance can be good governance or bad governance. So good governance में क्या होना चाहिए? एक तो globalization of knowledge and morality in leadership. Morality in leadership. Collective, cooperative, positive and humanistic efforts. Collective, cooperative, positive and humanistic effort and democratic pluralism. सो ये गुड गवर्नेंस के एसेट्स है. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज होनी भी चाहिए सब पे. मोरालिटी इन लीडरशिप, तो जो पर्सन हो लीडरशिप में उसमें मोरालिटी होनी चाहिए. मोरालिटी इन लीडरशिप. कलेक्टिव, कोऑपरेटिव, पॉजिटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एफर्ट्स लगाने चाहिए. डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म प्रमोट करना चाहिए. सो नॉलेज गिव्स अस विजडम एंड विजडम गिव्स अस कैपेबिलिटी टू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. सो विजडम हमें क्या देता है? कैपेबिलिटी देता है नॉलेज को यूज़ करके. So wisdom is a capability of using knowledge to decide what is right and wrong and take action. So governance should not crush people using CRPC, IPC. Governance should create condition to integrate. तो government को क्या करना चाहिए? Condition बनानी चाहिए to integrate. Governance should not use CRPC and IPC. Should create condition to integrate and create conducive environment for the people to integrate. Government should create conducive environment for the people to integrate. So on the basis of the survey conducted in sub-Saharan Africa, तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ. ऑन द बेसिस सर्वे कंडक्टेड इन सब सहारन अफ्रीका, वर्ल्ड बैंक गिव रिपोर्ट फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ. सो विद टाइम पर्सन चेंज होता है. विद टाइम वी मस्ट इवॉल्व एंड वी मस्ट बी डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल. तो वैसे गवर्नेंस को भी इवॉल्व होना चाहिए. तो व्हाट इज गवर्नेंस? दैट इज governance is behavioral aspect of the government is governance. Governance is behavioral aspect of the government is governance. तो behavioral aspect of government, BAG, that is behavioral aspect of government, इसको बोलते हैं governance. So government is behavioral aspect of governance. Governance is behavioral aspect of government. On the basis of assessment of government, governance can be good governance or bad governance. What is governance? It is a behavioral aspect of government. सो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है लेकिन बिहेवियर ऑफ द गवर्नेंस इज बैड. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसका स्ट्रक्चर बॉडी अच्छी है लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है? वो बैड है. तो इट इज़ बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर्सन के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कैसा दिख रहा है, बिहेवियर से ही लोग जज करते हैं उसे. तो गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गवर्नमेंट इटसेल्फ. सो डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटी टू गुड गवर्नेंस. जरूर नहीं है डेमोक्रेसी तो गुड गवर्नेंस भी होगा, करप्शन हो सकता है. The governance is a manner in according to which authority is going to used for the rational utilization of available resources for common interest. So governance क्या है? एक manner है according to which authority क्या कर रही है? यूज़ करेगी for rational utilization of available resources for common interest. Governance को बोल सकते हैं behavioral aspect of government, और governance is manner in which authority is used by the government for the rational utilization of available resources for the RUAR. That is for the rational utilization of available resources in public interest. सब्सिडी जैसे गवर्नमेंट ने दी तो इट शुड गिवन टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू अर्न. टाइम बाइट सपोर्ट देना चाहिए टू प्लांट अ नर्सरी. आप टाइम बाइट सपोर्ट दो जैसे टू प्लांट अ नर्सरी, एंड नर्सरी कैन नेवर बिकम अ बनियान ट्री अंटिल इट केम आउट इन अंडर द सन. ऐसा नहीं है आप नर्सरी में से उगाते रहो, कभी बनियान ट्री नहीं बन पाएगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा जब तक उस सन में नहीं आने दो. वैसे ही हमें एक दिन सब्सिडी बंद करनी है. सो विल नेवर बिकम द बनियान ट्री अंटिल इट कम आउट अंडर द सन. सो डे मस्ट कम व्हेन वी स्टॉप वेलफेयरिज्म एंड सब्सिडीज़. एक दिन आना चाहिए जब हम ये वेलफेयरिज्म एंड सब्सिडी कम करें. अवर टारगेट शुड टू एंड इट, टू एम्पावर पीपल. ठीक है, इसको ज़िंदगी भर उनको डिपेंडेंट बना के नहीं रखना है. तो सब्सिडीज पर्पज शुड नॉट टू सपोर्ट बट टू ग्रो दैम फ्रॉम विद इन. सब्सिडी का पर्पज़ क्या होना चाहिए? सपोर्ट करना नहीं, बट टू ग्रो दैम फ्रॉम विद इन. इवन रिजर्वेशन का पर्पज़ उन्हें सपोर्ट करना नहीं होना चाहिए. शुड एम्पावर पीपल एंड टू ग्रो दैम, टू ग्रो द सोसाइटी फ्रॉम विद इन. So 1990s में there was a collapse of USSR. IMF and World Bank denied loan to these countries who were victim of welfareism. 1990s में USSR चला गया, IMF World Bank लोन नहीं दे रहे थे उन कंट्रीज़ को. they were victim of welfareism कि लोगों को वेलफेयर करना है लोगों का. तो फिर आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, दैट इज कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दैट एम्फसाइज ऑन मार्केट लेड डेवलपमेंट. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या बोला? देयर शुड बी मार्केट लेड डेवलपमेंट. इंडिया में भी LPG रिफॉर्म्स आए.
So world governance came into picture in 1989 when the World Bank gave a cry for sustainable growth. तो वर्ल्ड गवर्नेंस कब आया था? 1989 में, जब वर्ल्ड बैंक ने रोया चिल्लाया कि सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए. तो वर्ल्ड गवर्नेंस केम इन टू पिक्चर इन 1989 when the World Bank gave a cry for the sustainable growth. So governance in modern time, modern type का governance जो हम बोलते हैं, तो word governance in modern time came into picture in 1989 when the World Bank gave cry for the sustainable growth.